Hello, Sekhaguin. How are you? Yeah, hello Rohit, I'm fine. How are you? I'm also fine. So, first of all, congratulations, Sekhaguin. Wipro में select होने के लिए. So Yeah, now, thank you so much. give brief introduction about yourself. Yeah, my name is Sekhar Guin. I'm from Ignasa Institute of Technology, BCA graduate, 2021 pass out. And right now I'm working in Wipro as a scholar trainee. Okay. So, Yeah, is it on campus or off campus? yeah, is it on campus? But you can apply also via off campus through, means you can apply through Wipro WILP program, uh, which is under is off campus. Basically, they are means they are recruiting from the BSc and BCA graduates, and there are many phases like phases one, phases two, phases three, and you can apply via through it. Okay, you can apply via off campus or on campus. Yeah, yeah, It's yeah, totally depend on you. Na? yeah. It's totally depend on you. तुम कैसे अप्लाई करोगे और मतलब राउंड वगैरह सब कुछ एक ही रहता है ऑन Okay. कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो. Okay, जिस टाइम ऑन कैंपस चलता है उस टाइम ऑफ कैंपस भी चलता है ना? या एक साथ चलता है मतलब दिसंबर वगैरह से स्टार्ट हो जाता है अभी तक चल रहा है Okay, okay. इसका. So, how many rounds were there? Give details of all round, how you approach all round, and give details of each and every round. Okay, so basically there are three rounds. Okay, first round is basically on FT, verbal, and the written assessment. And after that, if you clear that, you will be called for technical interview, and there 30 minutes max to max. After that, if you selected in technical round, you will be invited for HR round also. So basically, there are three rounds. Can you can you elaborate step by step like how what type of question in first round, what type of question in technical round, and also for HR round same. Yeah, and how I face these questions like that. Yeah. Yeah, yeah. So in apti, there are mainly four sections: quantitative aptitude, logical reasoning, verbal, and after that, there will be a written assessment. I mean, basically, क्वांट वर्बल और क्या बोलते हैं वर्बल में तो एक ही रहता है सारे कंपनीज में जैसा रहता है और क्वेश्चन का लेवल भी ज्यादा हार्ड नहीं रहता है मतलब यू कैन क्लियर 15 days प्रिपरेशन Okay. इट विल रिक्वायर देन फर्स्ट राउंड ऐसे ही क्लियर हो जाएगा और रिटर्न में ज्यादा से ज्यादा कुछ मतलब पूछते नहीं 200 वर्ड में कुछ असेसमेंट वगैरह मांगते हैं ये लोग और उस टॉपिक में 200 वर्ड में 200 ही लिखना पड़ेगा 200 नहीं लिखोगे तो ऊपर में रेड कलर का एक साइन आएगा तो 200 में लिखना पड़ेगा वो तो Exact बेसिकली 200 word na. ग्रामेटिकल Exact 200 word. एग्जैक्ट 200 वर्ड लिखोगे Okay, या okay. देन यू विल बी सिक्योर दैट मन सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि वहाँ पे चलो रेड फ्लैग्स तो नहीं आया. Okay, okay. या या एंड भारवल वगैरह भी ज्यादा वगैरह टफ नहीं रहता है वो सब तुम ऐसे ही क्लियर कर सकते हो मतलब नॉर्मल ग्रामेटिकल एरर्स एंड स्टेटमेंट एरर ये सब फाइंड करना पड़ता है एंड क्या बोलते हैं क्वांट में और लॉजिक में क्या बोलेंगे वहाँ तुम नीट में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एफ वगैरह लिखोगे तो जैसा नॉर्मल रहता है वही सब रहता है Okay, okay. विप्रो के क्वेश्चन में. So now for technical या round. दैट्स द फर्स्ट राउंड एंड technical round that will it will take 30 minutes and they will basically means तुम इसे टेक्निकल प्लस एचआर भी कह सकते हो क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जो लोग बैठते हैं मतलब पेनलिस्ट जो रहते हैं वो तुमको एचआर राउंड लेवल का भी क्वेश्चन करेगा उसके बाद टेक्निकल का क्वेश्चन भी करेगा so they will basically first asking me my they will asking for my introduction but after that they will asking that show me your cv तो मैंने सीवी वगैरह दिखाया तो बेसिकली तुम्हारे सीवी में जो जो टेक्निकल पर रहेगा वही वगैरह वही से वो लोग क्वेश्चन करेगा मतलब बाहर से क्वेश्चन नहीं करेगा अगर तुम लिखोगे पाइथन तो पाइथन से क्वेश्चन करेगा अगर तुम Okay. डीबीएमएस लिखोगे तो डीबीएमएस में से क्वेश्चन करेगा. या सो बेसिकली मैंने भी ज्यादा कुछ डाला नहीं
मैंने सीवी बहुत सिंपल रखा है, और वहाँ पे जो जो लिखा हुआ था डीबीएमएस और एसक्यूएल पार्ट और पाइथन जावा एंड ओओपी कॉन्सेप्ट and little bit of algorithm and data structure. So they will asking for that part also. Means सीवी में जो रहेगा वही से पूछेगा, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। तो मतलब सीवी में कभी भी कोई चीज झूठ नहीं लिखना है ना, मतलब जितना आता है उतना ही पार्ट लिखो, वो नहीं वहीं से नहीं, कुछ। झूठ वगैरह नहीं। हाँ, नहीं उससे रिजेक्शन नहीं, फेस करने का एक चांस हो। बार और, एक बार और टेक्निकल में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा मतलब, कौन सा? हाँ उससे रिजेक्शन मिलने का चांस मिलता है, क्योंकि वो लोग पूछेगा कि वो उस टेक्निकल पार्ट में तुम्हारा क्या क्या अचीवमेंट है, मतलब अगर तुम पाइथन सीखे हो तो पाइथन में कुछ एग्जाम वगैरह दिए हो कि नहीं, ये वो पूछते हैं वो लोग। हाँ, और आउट ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन ब्रीफ में जाना पड़ेगा। जैसे मेरे को फेस करना पड़ा ओपी का, कौन बताओ ओपी में क्या क्या होता है, ओपी का एडवांटेजेस क्या है, डीबीएमएस क्या है, एसक्यूएल क्यों यूज होता है, एसक्यूएल मतलब क्या क्या मार्केट में डीबी है, वो वगैरह वगैरह पूछा है। हाँ, बेसिकली दे आर नॉट आस्किंग फॉर अ प्रोजेक्ट इफ यू नॉट mentioning there that I have done this project and this, so they will asking for that. But if you not mentioning any project, they will not asking for that. इन विप्रो मेनली। Yeah, so technical was quite easy as compared to other companies in Wipro. Yeah, mainly Wipro and Infosys mass recruiting company. So, what are the resources you used for preparation? Is it paid? Is it paid course or not? Yeah, basically I'm using YouTube as a main resource. There are lots of channels like face Means totally free, Insta, Career Right. totally free resource. Yeah, totally free, and that's only for quant and logical reasoning. If you really want top level questions, you should go for paid version. Like I mainly go for IMS Institute. There will be an exam conduct that they will conduct an exam. If you clear that exam, you will be offered by 40% off. Something like that. I have bought that time, like December 2021, 2020. Sorry, I bought that. So एप्टीपैड में कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे कैट लेवल का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो लोग एप्टी वगैरह अच्छा कराता है। तो Okay, एप्टी में ज़्यादा क्वेश्चन मतलब फेस मतलब चैलेंजेस फेस करना नहीं हुआ, वहाँ से पढ़ लिया हम। now moving और to our, वर्बल वगैरह में अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुमको, या बताओ। हाँ नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। या तो अगर तुम वर्बल वगैरह में ज़्यादा कुछ मतलब आता नहीं है, विप्रो इन्फोसिस टीसीएस में, मतलब तुम इजीली क्रैक कर सकते हो, मतलब इजी तुमको अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश में ग्रिप है ना, तो तुमको तुमको मिल जाएगा वो वाला पार्ट तो क्लियर हो जाएगा। मतलब कि फ्री रिसोर्स या करके यूट्यूब जैसे से तुम हम यूज कर लोग सकते हो कर सकते मतलब। हैं ना, यूट्यूब से तैयारी करके हम लोग या एग्जाम क्रैक कर या सकते हैं या आराम से। ओके ओके। या इजीली इजीली। और इंडिया भी इसी सब से भी एप्टीट्यूड कर सकते हैं हम लोग। या इंडिया बिक्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडिया बिक्स में हम यूज करते थे, लेकिन हम वीडियो ऑडियो जैसे ज्यादा मिलता था, वो वाला मेरा बहुत अच्छा लगता था, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा ब्रेन में घुसता है वीडियो ऑडियो, यस यस। नाउ तो मूविंग हम वही टुवर्ड्स वही से ज्यादा नेक्स्ट करते। क्वेश्चन। So is resume CGPA 10th, या प्लीज। is resume CGPA 10th or 12 grades matter for on-campus placement or off-campus placement? या बेसिकली देखो, तुमको ऑन कैंपस में जाना होगा, तो ऑन कैंपस में दे विल आस्किंग फॉर 10th 12th में मिनिमम क्राइटेरिया, लाइक हमारे वहाँ पे तो क्या होता था, 60% मिनिमम था। तो विप्रो में 55% था, लेकिन अदर्स कंपनीज में 60% था। तो 10th 12th का तो मैटर करता है, थोड़ा बहुत करता है। मैं लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिसके पास 59% था, लेकिन वो नहीं बैठ पाया अदर कंपनीज में, लेकिन विप्रो में बैठ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे 55% रहता है। और सीजीपीए वगैरह भी मैटर करता है, वहाँ पे भी लगभग 60% 6 सीजीपीए लगता है,
तो तुमको 60% रहना पड़ेगा, तो इन WBUT तुमको 6.5 CGPA के ऊपर रखना पड़ेगा फाइनल ईयर तक। तो ये मैटर करता है। ओके, थैंक्स। या तो कमिंग टू द, या मैटर करता है, थोड़ा बहुत तो मैटर करता है, लेकिन तुमको रिज्यूम ऑफ वगैरह भी कैंप। बहुत अच्छा बनाना होता है, मतलब ज्यादा कुछ। ऑफ कैंपस में भी वही सेम टू है। तो रिज्यूम वगैरह भी तुमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, मतलब ज्यादा कुछ, मतलब बहुत फास्ट नहीं है, 2-3 पेज का तुम रिज्यूमे बना दिए और वो बंदा पढ़ते रहता है, तो तुमको नहीं करना है। इट विल बी शॉर्ट एंड ब्रीफ एट द सेम टाइम। या मैंने 1 पेज का बनाया था, वही में सब कुछ मिल गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा वर्क करके मिल गया था। और रिज्यूमे हम लोग को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, टू ठीक है। डी पॉइंट, एक पेज का ना। Yeah, yeah. If you can't able to make a CV or resume, you can buy it from online. But don't make it 2 page, 3 pages long. ओके। They will asking lots of questions, ओके। and don't use wrong, मतलब ज्यादा कुछ बकवास नहीं बोलना है, मतलब हम ये भी जानते हैं, हम वो भी जानते हैं, वो सब नहीं करना है। तुमको एक लैंग्वेज आता है, तुम एक ही लिखो, तो वही वही से क्वेश्चन पूछेगा। लगभग मैं तो जावा पाइथन लिखा था, वही से क्वेश्चन किए थे कि जावा में क्या क्या जानते हो। तो जितना आता है उतना ही लिखो, उससे ज्यादा नहीं। या ओके। नहीं, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, और जितना लिखोगे वही से, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन करेगा, मतलब डीप से वो क्वेश्चन भी करेगा। So moving towards next question, how you handle rejections? Because lots of या students facing rejections nowadays for placement season. या So how you handle rejection and how you overcome this and mentally prepare for rejection? या मेंटली प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वक्त में सितंबर से तुम्हारा कॉलेज प्लेसमेंट ऑन कैंपस स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली फर्स्ट विप्रो से आने पहले तो 3 कंपनीज और आ चुके थे, डेल्टा एक्स, जेनोस्टेक्स एंड सैप लैब। तो ऑल में हम रिजेक्ट हो गए। तो बेसिकली तब से पढ़ाई स्टार्ट किए थे, चलो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो नवंबर में प्रिपरेशन लिया और दिसंबर में एग्जाम दे बैठे, 10 तारीख को शायद था एग्जाम। तो वहाँ पे तो रिजेक्शन मिला, तो उसी से मोटिवेशन आया था, नहीं अब तो करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बहुत सारे कंपनीज में बैठे, और एफटी में बहुत सारा, मतलब एफटी में मेरा बहुत ग्रिप था, तो मैंने एफटी फर्स्ट राउंड वाला तो पार्ट सब में क्लियर कर चुके थे। आफ्टर दैट मतलब विप्रो में भी क्लियर कर चुके थे, इन्फोसिस में भी क्लियर कर चुके थे, कॉग्निजन में क्लियर हो चुका था, एंड डेलॉयट में भी क्लियर हो चुका है, एंड कैपजेमिनी में भी। तो ब्रांड में तो हम सब क्लियर हो चुके थे, तो यही मोटिवेशन पार्ट था, मतलब हमको करना पड़ेगा यही। मतलब ये प्रिपरेशन तो करना होगा रिजेक्शन बस। हाँ, अच्छे से। हाँ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मतलब कोई तुमको तो फोर्स करके तो नहीं बुलाएगा, बेटा ये कर ले, हम्म। बेटा वो कर ले, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको अगर प्लेसमेंट चाहिए तो तुमको एक्टिव वगैरह तो करना पड़ेगा। टेक्निकल इंटरव्यू के लिए पढ़ना भी पड़ेगा। तुम सारे साल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ तो करना पड़ता है। मतलब एक तुम लैंग्वेज जानते हो, मेरे मेरे हिसाब से मेरा एक ही लैंग्वेज में ज्यादा क्लियर है, जावा में। तो हम जावा में पूरा क्लियर थे, हम हाँ जहाँ से भी क्वेश्चन करेगा हम पढ़ेंगे, मतलब ठीक ठाक से हो जाएगा, यही बात। मतलब कि अच्छे से हम लोग को रिजेक्शन आए फिर भी उससे घबराना नहीं है, अपना और प्रिपरेशन देते जाना है, प्लेसमेंट हो जाएगा। या प्लेसमेंट तो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अभी तो देख रहे हो आईटी में 40 से 50% ज्यादा हुआ है, मतलब 4-5 साल से जो नहीं हुआ, अभी 2021 में ज्यादा हुआ है, तो आईटी में स्कोप है। तो तुमको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो प्लेसमेंट उठाने के लिए। सो लास्ट क्वेश्चन। चाहते मेनी हो तो तुमको एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा। या बताओ। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि एचआर राउंड जो होता है उसको बहुत सारे स्टूडेंट इजीली ले लेते हैं। मतलब उसका सोचते हैं टेक्निकल निकल गया, एफटी निकल या गया, एचआर के लिए तैयार नहीं रहते हैं वो। और कितने ऐसे स्टूडेंट का मैं सुना हूँ कि वो एचआर में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो एचआर का प्रिपरेशन कैसे या करें? first of all, my suggestion is don't take it easy. Don't take it easy. Means I have rejected by 3 companies. Deloitte में रिजेक्ट हो गया था, कॉग्निजेंट में भी रिजेक्ट हो गया था, और इन्फोसिस में भी रिजेक्ट हो गया था। तो 3 कंपनीज में एचआर तक गए, लेकिन हो नहीं पाया।
तो एचआर में ज़्यादा मतलब कैजुअली नहीं लेना है, मतलब प्रिपरेशन लेना है, क्योंकि वो लोग सिर्फ एचआर का मतलब एचआर नहीं होता है, टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछते हैं वो लोग। और बेसिकली तुम्हारे कम्युनिकेशन में ग्रिप करना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश में कितना फ्लुएंटली तुम बोल सकते हो, दैट्स द मेन मैटर। तो तो तुमको एचआर रहना को पड़ेगा वो। कैजुअल नहीं लेके उसको अभी हम लोग का एक दिन पहले प्रिपरेशन करे तो चल जाएगा। ओके। सो अभी जो है या स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन उसके तो लिए एक करना पड़ेगा। छोटा सा मैसेज कि कैसे मेंटली भी प्रिपेयर रहे और जॉब नहीं लग रहा है तो कैसे हम लोग तैयारी करें, एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहोगे स्टूडेंट को, जूनियर्स को अपना? देखो हम भी स्टूडेंट थे, अभी अभी 2-3 महीने हुए ग्रेजुएट हुए, तो हम भी स्टूडेंट रहे हैं। तो मेरा शॉर्ट मैसेज बोल के मैं यही बोलूंगा कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, तो रिजेक्शन में मत डरना। वहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन में कमी नहीं रहनी चाहिए, बस करते रहना है और फोड़ना है, यही बस रहना है। माइंड में ये सब सेट करना है कि हमको लेना है, बस एक ना एक तो प्लेसमेंट फोड़ेंगे फोड़ेंगे बस। चाहे वो मार्केटिंग हो या प्रोडक्ट बेस हो, उसमें कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमको एक तो फोड़ना है। एटलीस्ट एक लेना है, उसके बाद आगे का देखेंगे। हाँ, उसके बाद आके हम देख लेंगे, लेकिन हमें अब एक तो सिक्योर करना है। लेकिन अब तो क्या बीटेक हो जाएगा या ग्रेजुएट हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग बीसीए वालों को, तब सोचना पड़ेगा कि मास्टर्स करूँ या जॉब के लिए अदर्स पढूं। तो वो नहीं, हाथ में कुछ ना कुछ तो रहना है कि हाँ बस ऑप्शन नहीं है, मेरे पास चॉइस है, हम हमको यही करना है। सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू या यू शेखर गोइन। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हम लोग पूरे अच्छे से कवर कर लिए और बहुत ही अच्छे से तो आपने बताया कि क्या क्या हम लोग कवर करना चाहिए और किस चीज पे ध्यान देना चाहिए और किस पे नहीं। शॉर्ट एंड क्रिस्प में थैंक यू या वेरी मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर, या थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलो।